ऐसे का पेपर जो होता है वो सबसे इजीएस्ट पेपर होता है. सो इन टुडेज स्पेशल क्लास वी आर गोइंग टू tackle the strategy to prepare the essay paper. The strategy which is needed to prepare this paper, we are going to work upon that. Essay paper test three things: personality, thoughts and attitude. Essay paper means में आपके तीन चीजों को टेस्ट करता है. पहला है personality, फिर है thought और फिर होता है आपका attitude. ठीक है. These three qualities are tested in essay paper. Always remember, हमेशा याद रखना. Clear? Now let us start with this preparation strategy. Now many of you are preparing for 2020, some of you are preparing for 2021 and some are preparing for 2022. We are going to handle this paper accordingly. ठीक है. Now those of you who are preparing for 2020, right? Those of you who are preparing for 2020, you have still 1.5 months, right? अभी भी 1.5 महीना है. You can daily practice one essay. Now some student was asking, should our attitude and thought match with that of examiners? How do you know what kind of attitude or thought process the examiner has? आपको क्या पता कि examiner का attitude या thought process क्या है? Right? It's impossible. You should develop your own thought process. आप तो negative नहीं हो ना, आप तो solution oriented हो ना, problem oriented नहीं हो ना. Why you are trying to match with somebody else's thought process? This shows your personality then. देखो होता क्या है, जब आप कोशिश करते हो ना कॉपी करने की किसी को, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी दिखती है कि हमने खुद को तैयार नहीं किया है अभी. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू डू नॉट हैव टू मैच योर सेल्फ विद समबडी एल्स. किसी और से अपने आप को कभी मैच मत करना, खुद को डेवलप करना है. राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज ऑब्वियसली बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड. आपको करना क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है. राइट. फर्स्ट कार्तिक, दैट ओनली आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्ट यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ मत देखो, उनके सोल्यूशन की तरफ देखो. नेवर लुक एट द प्रॉब्लम, लुक एट द सोल्यूशन. सेकेंडली, ऑलवेज बी डिसाइसिव इन नेचर. हमेशा डिसाइसिव रहो. डिसीजन मेकिंग के योर केपेबिलिटी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट. आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. थर्ड, कॉन्फिडेंस. इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली यू विल बी ऑलवेज प्रॉब्लम ओरिएंटेड. अगर कॉन्फिडेंस जीरो होगा तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहोगे. ऑलवेज रिमेंबर, द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, राइट, इन योर अप्रोच, the more solution oriented you will be and the more marks you will obtain in essay. Okay, clear everyone? Santosh Kumar, from now only essay paper you have to prepare one essay, practice writing one essay. There is no book for essays. Never be dependent on books. Okay, कभी भी ऐसे के लिए किसी किताब पे डिपेंडेंट मत रहना. If you want to develop your thinking process, your opinions by after reading some important essay books, then you are losing on the marks. ओके. अगर आप ऐसे के लिए किसी किताब से ऐसे रट कर जाओगे तो दिक्कत होगी. डू नॉट क्रैम द एसेज फ्रॉम एनी बुक. किसी भी किताब से एसेज को रटना मत. क्लियर? ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया. नेवर क्रैम एसेज फ्रॉम एनी बुक. देयर आर बुक्स लाइक 151 एसेज और 200 एसेज. ऐसी किताब आती है, किसी में 111 एसेज है, किसी में 200 एसेज है. नेवर क्रैम एसेज. नेवर गो आफ्टर दोज बुक्स. कभी भी ऐसी बुक्स मत खरीदना जिसमें 100 एसेज हैं. राइट. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेन क्लास. अब क्लास शुरू करते हैं. बिफोर दैट हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. इफ यू वांट टू Riya Mishra, examiners are not partial. What are you saying? You are preparing for UPSC and you think UPSC will be partial in its checking, in its thought process. ठीक है? UPSC is neutral. Okay? UPSC हमेशा neutral होता है. And always remember, you also have to be neutral. Do not side with anybody else. Okay? Any party, any ministry, no. You have to be neutral. UPSC is also neutral, so your exam checking is also neutral. ठीक है? जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो आपका न्यूट्रल है एग्जाम. ठीक है? So on Unacademy Plus, I am taking 2 courses: Art and Culture Crash Course and Revising Current Affairs through MCQs. All right. If you want to subscribe to Unacademy Plus, you can get 10% discount by using my referral code Sharma20. All right. So let's start with the class. Start करते हैं class. Now, first of all,
2 essays you have to write. You have to attempt 2 essays. आपको 2 essays attempt करने हैं, ठीक है? There are certain topics, list of topics which are given, and out of those you have to attempt 2 essays. उन topics में से आपको 2 essays attempt करने हैं. Then there will be choice given from variety of subjects. आपको choice दी जाएगी. Don't worry. Don't be stressed that they will give you the topics and you have to write on them. No, choices will be given. ऐसा नहीं होगा कि आपकी choice नहीं ली जाएगी. आपको options दिए जाएंगे जिसमें आप comfortable हो उसमें लिखो. The more you are comfortable in any topic, you can pick up that topic and write. So the candidate is expected to stick to the subject of the essay. There are some students who beat around the bush, right? करते क्या है, कोई topic चुन लिया, फिर जो मन में आ रहा है इधर उधर की बात लिख दी. There are students who do not stick to the subject. I don't know why, but they drag around the topics here and there. You have to arrange your ideas on a topic in orderly way. आपको एक particular order में, ठीक है, arrange करना है. देवराज, please be serious in the class. ठीक है, please be serious in the class. You are an UPSC aspirant. At least respect that. उसको respect करो, ठीक है? So what you have to do is you have to arrange your ideas in an orderly way. आपको अपने आइडियाज को एक ऑर्डर में अरेंज करना है. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनी आइडिया, एनी टॉपिक, ठीक है, यू ऑलवेज हैव पॉइंट्स. मीनाक्षी, ब्रेन तो होता है ना सबके पास. ऑल ऑफ यू हैव ब्रेन्स, राइट? एंड ऐसे इज प्योरली ओपिनियन बेस्ड, राइट? फिलोसफिकल इन नेचर. ऐसे फिलोसफिकल होता है नेचर में. तो आई डोंट थिंक कि आपके पास ओपिनियंस नहीं आएंगे, राइट? इसलिए यही बात मैं देवराज को समझा रही हूँ कि बी सीरियस इन द क्लास. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग देवराज टू बी सीरियस इन द क्लास. See, all of us have thoughts. In one day, we have around 70,000 plus thoughts. एक दिन में हमें 70,000 plus thoughts आते हैं. Similar thing applies to essay. जब आप essay का topic देखेंगे, कितने thoughts, कितने ideas आ जाएंगे. And when you are serious about the topic, yes, you are right, Meenakshi. When you are serious about the topic, don't you think that about the exam, don't you think you will have some points to write? अब देवराज जैसे students को लिख रहे हैं, points नहीं हो तो अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, आपको नहीं लगता आपके दिमाग में कोई ना कोई पॉइंट आएगा, आप छोड़ नहीं दोगे, राइट? ओके, ऑलराइट. सो द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे एंड अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली वे. क्लियर? प्लीज टेल मी इफ ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी इज देयर. If the slide is visible, please tell me. Okay, slide is visible. All right. So you have to first go through the topic, and then you have to make sure that you have the ideas which are coming up in your mind. And when the ideas are coming up, you have to arrange them in orderly way. Whatever ideas you have, with a pencil, just on the question papers, roughly in very small words, arrange those ideas. Or in the mind itself, develop a practice to arrange the ideas. Alright, the writing has to be in a concise way. Very concise writing should be there. That means in point format you have to arrange your ideas. Alright, those who has presented the essay in an articulate way with effective expression is likely to score high. If you want to score high in essay, if you want that your chances of scoring 60% plus marks in essay should be there, then you have to present your essay in a very expressive manner, in a very effective manner. Alright. Clear? This paper plays a very crucial role in determining the rank of the student. Do not forget this. Essay paper is the paper which will determine the rank, right? It will determine the rank. Why? Because it is a personality testing paper. This paper is a personality testing paper. Clear? No, Radhi. Okay, 90% mark is not possible, right? Clear? So correct choice of topic in appropriate method. This is not a university level exam. It is possible, 1% possibility is there, 1% possibility is there, but 99% not possible. 60% से ऊपर तक नंबर आ सकते हैं, ठीक है? Clear? All right. So correct choice of the topic and appropriate method of writing are important. And it is advised to choose factual topics where you can pack in a lot of information. So if you think that philosophically you are not very good, अगर आपको लगता है philosophically आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो philosophical topics को avoid कर सकते हो. You think that your thought process is not very fast when it comes to philosophical topics, then you can skip the philosophical topics and you can pick up any other essay
which requires facts and figures. कोई ऐसा ऐसे भी आप उठा सकते हो जिसमें facts और figures की जरूरत हो, जो आप जिसमें आप अच्छे हो. In whichever topic or stream you are good in, you can pick up that essay. All right. Now comes the method of writing. Okay. Yes, Sudarshan, it gives you advantage. Now comes method of writing. What kind of method you should apply in writing essay? First of all, whenever you look at topic, whenever you read the topic, you have to start brainstorming. Essay paper is a test of your mind. आपकी mind का test है. Not everyone knows everything, right? You have to be content with the knowledge that not everyone knows everything, right? हर किसी को सब कुछ नहीं पता होता है. So in that case, you have to develop your thought process. उस हिसाब से आपको thought process develop करना पड़ेगा. So first, when you look at the topic, जब आप topic देखते हो, what you have to do is you have to start brainstorming. That means you have to arrange your ideas. आपको अपने ideas निकालने. See, if you are prepared diligently for 1 year, अगर आपने बहुत अच्छे से 1 साल की तैयारी की है, then there will be some content in your head. आपके दिमाग में कुछ ना कुछ content होगा, ठीक है? Clear? When you have some content in your head, it will automatically come out if you focus on your brain. अगर आप टॉपिक देखने के बाद दिमाग पे फोकस डालोगे, आपको कोई ना कोई पॉइंट निकल के जरूर आएगा टॉपिक के ऊपर. राइट डाउन दोज आइडियाज दैट यू नो अबाउट द टॉपिक. जो भी आइडियाज उस टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसको साइड में लिख लो. डू नॉट क्लासिफाई और सिस्टमेटाइज योर पॉइंट्स एट दिस स्टेज. अभी इस स्टेज पे जब आइडियाज को आप लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग अप योर आइडियाज, डू नॉट क्लासिफाई देम कि पहले ये लिखेंगे पहले ये नहीं, ऐसा नहीं करना. You have to first write down your ideas, whatever thought is coming in your mind regarding that topic. Then put them on paper randomly as they are flowing in your head. जैसे जैसे दिमाग में आता जा रहा है, लिखते जाओ पेपर में साइड पे. Later on, you have to arrange the ideas in logical and sequential manner. Sequential means that the first paragraph, second paragraph, third paragraph, right? Like that, you have to arrange your ideas very logically, very systematically. You have to classify your ideas now. Now, once the sequential thing is done, the sequence thing is done, then you have to start writing. अब आपको लिखना शुरू करना है, right? Point wise also you can write. Paragraph wise also you can write, but it is essay ना, so essay it's not written completely in point format. Essay completely point format में नहीं लिखा जाता, you all know that, right? It is written in paragraph format. Paragraph format में लिखा जाता है. Clear? Audio not clear? Please tell me if it is clear right now. अब क्लियर है, जरा मुझे बता दो. Is it clear right now? If audio video is clear, please tell me it is clear. Shashank? Okay, Sudarshan. Sir Bunny is also saying it is clear. All right. अब सब क्लियर है ना? ठीक है. Now make sure that you have enough time for revision. ऐसा मत करना कि लिखते लिखते टाइम का ख्याल भूल गए. Okay? Just give me a second, I will refresh it. जरा मुझे थोड़ा टाइम दो. इला टॉपिक, हम किस टॉपिक के ऊपर थे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक, आफ्टर लुकिंग एट द टॉपिक, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है टॉपिक देखने के बाद, दैट वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, राइट? वी हैव टू go in the we have to go into the content which we have stored over in here, right? Then we have to pick up the ideas from our mind which we know about the topic के बारे में जो ideas हमारे दिमाग में है उनको हमें निकालना है. Clear? Do not classify or systematize your points at this stage. इस stage पर आपको क्लासीफाई नहीं करना अपने टॉपिक्स को. जस्ट वॉट एवर आइडियाज आर कमिंग, जस्ट मेक श्योर यू आर राइटिंग देम डाउन. जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको लिखते जाओ. पुट देम ऑन पेपर रैंडमली एज दे फ्लो इन. Later arrange the ideas in logical and sequential manner. फिर अपने ideas, when the ideas now are over, right, on the topic you have all the content, then you have to arrange them. फिर आपको arrange करना है. And once you have arranged your idea, you have to start writing them. Now you have to write in this manner: I, B, C. इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन. इस तरीके से आपको अपने आइडियाज को अरेंज करना है, राइट? इन द बॉडी ऑफ द आंसर यू कैन इंक्लूड फ्लो चार्ट ऑल्सो, यू कैन इंक्लूड डेटा ऑल्सो, यू कैन इंक्लूड टेबल ऑल्सो, एनी ग्राफ you want to include, that also you can include, right? Clear? Then conclude. Always remember, conclusion should be neutral and it should be way forward. That means
It should be solution oriented. ये solution oriented होना चाहिए. Conclusion should always be neutral and way forward. That is solution oriented. Introduction should be positive introduction. That means whatever the topic of the essay is, you have to introduce it. जो भी topic है essay का वो आपको introduce करना है. Yes, Mir Sajidul Islam, yes, it is allowed. Okay, clear everyone? Now seventh point is ensure that you have enough time for revision. आपके पास revision का काफी समय होना चाहिए. So when you are writing, do not just get off on the track from the time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखते जा रहे हो टाइम का कुछ पता ही नहीं है. You have to make sure that when you are writing, you are also keeping a tab on your time so that there are still time for revision. आपके रिवीजन का टाइम आपके पास बचा हो, इसे मेक श्योर करने के लिए आपको टाइम पे नजर रखनी पड़ेगी. क्लियर? रिमेंबर, इट्स अ जर्नल ऐसे पेपर. दैट मीन्स यू शुड नॉट बी हाईली टेक्निकल. बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मत चले जाना. ठीक है? Clear? Do not just fall into the technical aspect. It's a 3-hour paper. You have to write 2 essays. You can divide accordingly. Okay? ठीक है सुदर्शन? 3 घंटे का पेपर होता है ना, 2 ऐसे लिखने हैं, तो उस हिसाब से जरा कैलकुलेशन बिठाओ, उसी हिसाब से कंप्लीट करो कि रिवीजन का भी टाइम मिल जाए. ठीक है? क्लियर? All right, technical words should be used, simple words should be used. Technical words, if they are you can say wasting the time of examiner, then those words should be avoided. देखो यहाँ पर आपको अपनी वो नहीं जाननी है कि हमें कितने इंग्लिश आती है या हमें कितना टॉपिक के बारे में कितना हाई लेवल इंफॉर्मेशन है. नहीं, आपको बहुत सिंपल होना है. सी, यू आर गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर और IPS और IRS. यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द सिटीजन्स. राइट? नॉट ऑल द सिटीजन्स आर वेरी वेल इक्विप्ड विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. हर कोई सिटीजन को तो हर सारी नॉलेज नहीं होती है ना. राइट? बहुत से अनएजुकेटेड भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में लोग. तो आपको बहुत ही आराम से सिंपल रहकर उन लोगों को एडमिनिस्टर करना है. यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन योर अप्रोच. दीज थिंग्स आर टेस्टेड इन ऐसे. ऐसे में क्या टेस्ट किया जाता है कि आप कितना शो ऑफ हो या आप कितने सिंपल हो, ग्राउंडेड हो. हाउ मच शो ऑफ यू कैन डू और हाउ मच सिंपल यू कैन बी, दैट इज टेस्टेड. शो ऑफ करने लगोगे, यू विल लूज मार्क्स व्हेन यू विल शो ऑफ. राइट? क्लियर? इस तरीके से ऐसे लिखना है. यू हैव टू राइट दिस ऐसे इन सच अ वे दैट द नॉर्मल सिटीजन शुड अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग योर ऐसे व्हाट इज इट ऑल अबाउट. नॉर्मल सिटीजन को भी समझ आना चाहिए, लेमैन को भी समझ आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो. इट शुड बी सो ब्यूटिफुली सिंपल, ब्यूटिफुल एंड क्रिएटिव. आपका ऐसे इनोवेटिव होना चाहिए, सिंपल भाषा में होना चाहिए. द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी सच दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. इवन दैट स्टूडेंट हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दैट पर्सन शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर ऐसे. इस तरीके से होना चाहिए आपका ऐसे. क्लियर? अब समझ आ गया? नाउ अप्रोच इज क्लियर. while writing essay, the approach is clear. What should be the approach? It should be simple, straightforward, creative and innovative and solution oriented. Solution oriented positive होना चाहिए. ये नहीं पढ़ने के बाद इंसान डिप्रेस्ड हो जाए. Right? It should not be such that after reading it the person gets depressed. Okay? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और लाइट होना चाहिए आपका ऐसे. Clear everyone? इतना क्लियर हो गया? All right. Now what is an essay? Essay is a piece of writing which is often written from an author's personal point of view. So your personal point of view should be IAS ऑफिसर या IPS या IRS का एक रिपोर्ट में अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए वो क्या होना चाहिए? If you are an IAS, IPS or IRS and your personal point of view is being asked, how it should be? It should be solution oriented. आप complaining attitude के हो गए तो दिक्कत हो जाएगी. If you are somebody who complains a lot, that means it's a problem here. ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर complaining attitude है आपका. Right? You have to avoid complaining attitude. You have to avoid criticism. बिल्कुल निंदा नहीं करने बैठ जाना किसी की कि पूरे ऐसे में सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो. राइट? यस कर सकते हो मीनाक्षी. ठीक है? यू हैव टू बी solution oriented, neutral. You do not have to take sides नहीं लेने हैं यहाँ पर किसी के भी. Neutral, IAS, IPS, IRS, all of these are neutral. And you have to be positive. क्योंकि अगर जो कंट्री की जिम्मेदारी अपने कंधों पे रख के बैठा है, देशवासियों की जिम्मेदारी, एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखकर बैठा है, वो ही नेगेटिव होगा या क्रिटिसिज्म करेगा या प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा, वो क्या संभालेगा? If you are somebody who criticizes a lot, or if you are somebody who is problem oriented, not you are taking sides, this party or that party, or you are negative, what will happen? Or you are complaining in nature, right? What will happen? You will never be in a position to handle the citizens of your district, right? That is why you have to be positive, neutral and solution oriented. ठीक है?
क्लियर? अगर आप ये 3 क्वालिटीज रखते हो तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो फ्यूचर में। अगर इन तीनों में से कोई एक क्वालिटी मिसिंग है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। इफ एनी वन क्वालिटी आउट ऑफ दीज 3 इज मिसिंग, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? Clear? So the importance of writing essays needs to be underlined, because in civil service main exam, essay is a separate paper whose marks are counted in mains and on the basis of which ranks are also determined, because it's a personality testing written paper. ये personality test करने वाला written paper है, तो इसके basis पे आपकी ranks भी determine होगी कि इस तरीके की personality के आदमी को कौन सी rank देनी चाहिए, right? Clear? Also, the novelist Stephen King put it very beautifully when he said, I write to find out what I think, right? आपकी thinking जानने का एक तरीका है कि इंटरव्यू लो, और दूसरा तरीका होता है आपसे लिखवाया जाए। If somebody wants to know what your thinking is like, अगर कोई चाहता है समझना कि आपकी thinking कैसी है, आपका thought process क्या है, तो वो क्या करेगा? या तो इंटरव्यू लेगा या आपसे लिखवाएगा। Either the person to know about your thinking or attitude, he will take your interview or he will make you write, right? So the writing expresses your personality and attitude. आपका seriousness, personality, attitude इस एग्जाम के लिए suitable है या नहीं, ये आपकी writing बताएगी। Writing means your thoughts on the paper will tell the examiner. So it should not be show offy. Show off नहीं करना। Please remember, do not be show offy in essay paper. बिल्कुल show off नहीं करना है, ठीक है? आपको knowledge है तो उसको बड़ी humbly present करना है। If you have knowledge, very humbly, with humility, you have to present it. ओके, क्लियर? इतनी बात याद रखो, सब इजी है। नाउ इन सिविल सर्विस एग्जाम आल्सो वी हैव अ पेपर वर्थ 250 मार्क्स, दैट इज द एसे पेपर। ये आपका एसे पेपर है 250 नंबर का, क्लियर? 2 ऐसे लिखने होते हैं, यू हैव टू राइट 2 essays, 125 मार्क्स ईच, क्लियर? बट स्टूडेंट्स ऑफन you can say they do not focus on this particular paper. बच्चे ना इस पे फोकस नहीं करते। What they think, it's essay ना, we have to write 2 essays, we'll manage. बच्चे सोचते हैं बाकी पेपर्स पे ध्यान दे दो, 2 ही तो पेपर है, मैनेज कर लेंगे हम, राइट? दैट इज रॉन्ग, ठीक है? प्रतीक इज सेइंग व्हाट शो ऑफ। प्रतीक, शो ऑफ मतलब बहुत हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज करने बैठ जाना, ठीक है? या किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करने लगना, अपने आप को बिल्कुल ऊपर प्लेटफॉर्म पे रखना, ठीक है? इसको शो ऑफ कहते हैं, समझ आ गया? या फिर बहुत ही ज्यादा कलाकारी दिखाने बैठ जाना, कोई ड्राइंग बना रहे हो तो प्रॉपर तरीके से कलर कर रहे हो, स्केच कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है? बहुत ही हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ आंसर प्रेजेंट करना है, दैट इज शो ऑफ, दैट इज नॉट बीइंग शो ऑफ, ओके? नाउ व्हाट यूपीएससी हैज टू से अबाउट ऐसे पेपर, ये तो चलो हमारा ओपिनियन हो गया। यूपीएससी का क्या कहना है ऐसे पर? यूपीएससी has specifically said this on its website. यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे स्पेसिफिकली कहा है, सो जे हैंडराइटिंग शुड बी in a manner which can be read properly, ठीक है? क्लियर? ठीक है? हैंडराइटिंग मतलब ऐसी होनी चाहिए कि कोई पढ़ सके। कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो मार्क्स कैसे देगा? इफ द एग्जामिनर कैन नॉट रीड योर आंसर, हाउ he or she is going to give you marks? So make sure that it is at least a person can read your handwriting, okay? UPSC has said that candidates may be required to write essays on multiple topics and they will be expected to keep closely to the subject of the essay. This has been said by UPSC, to arrange their ideas in an orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. That means what the topic is, you have to exactly write on that topic. Do not go here and there. Do not stray away from the topic, okay? And be very concise and exact in your presentation. जो आप लिखना चाह रहे हो, जो thought process है, उसको as it is पेपर में उतारना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। There are students who write unnecessarily, right? जो पता नहीं टॉपिक क्या होता है और कहीं उनकी ट्रेन पहुंच जाती है, ऐसे नहीं करना। जो टॉपिक है एंड तक टॉपिक पर बने रहना है। So you have to write in paragraph format, paragraph plus point format. सिर्फ पॉइंट में मत लिखना। इफ यू आर राइटिंग ओनली इन पॉइंट फॉर्मेट, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, बिकॉज ऐसे इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है? ऐसे होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर में। तो पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट का अमेलगमेशन होना चाहिए। देयर शुड बी फ्यूजन ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट फॉर्मेट। यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, यू कैन मेक टेबल्स, यू कैन प्रेजेंट डेटा, यू कैन कोट रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स भी आप कोट कर सकते हो। Clear everyone? You can write quotes also by famous personalities. Quotes भी लिख सकते हो. You can introduce your answers by quotes. Beginning ही आप quote से कर सकते हो. Clear?
दिस इज अलाउड. नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर. कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है ऐसे. नाउ देयर आर मेनी बुक्स, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स विच से learn 150 essays in a month or learn 200 essays in a week. ऐसी किताबों को नहीं पढ़ना, राइट, कि एक किताब आ गई जिसमें 200 essays है उसको रटने लगे, ऐसा नहीं. नॉन फिक्शन you can read. Specific magazines like Yojana, Economic Survey, EPW, those magazines or books you can read. Collecting good stories or anecdotes and quotes, for example life story of Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, those you can read, right. इससे क्या होता है, आपकी स्पीच, आपका कंटेंट पे होल्ड, आपका प्रेजेंटेशन पे होल्ड, फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ आती है. सी इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी हैव स्टडीड इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर इन क्लास सिक्स में हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, राइट. Then there are some grammatical mistakes which some students make. बहुत से tenses में, figures of speech में grammatical mistake बच्चे करते हैं. So you have to work on that. That you can work upon by reading non-fiction. Non-fiction किताब अगर आप पढ़ते हो तो उससे क्या होता है, mature thought process develop होता है. By reading what is EPW. These are the magazines. Economic magazine हो गई एक आपकी EPW. योजना हो गई जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाली मैगजीन है, राइट. बजट से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फैक्ट्स फिगर्स के लिए आप पढ़ सकते हो. क्लियर. इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, ठीक है, ईपीडब्ल्यू. ठीक है, आप बेसिक रिपोर्ट्स, मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, एसडीजी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो पढ़ सकते हो. क्लियर. टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. यस, कुरुक्षेत्र इज फॉर ज्योग्राफी. मीनाक्षी, कुरुक्षेत्र मत पढ़ने बैठ जाना, वो पब एड ऑप्शनल के लिए और ज्योग्राफी के लिए होता है. ठीक है, डाउन टू अर्थ ज्योग्राफी, कुरुक्षेत्र पब एड ऑप्शनल. बट फॉर ऐसे यू डू नॉट हैव टू डू पीएचडी. ऐसे के लिए पीएचडी थोड़ी करने बैठ रहे हो आप, ठीक है. तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कीम्स की होनी चाहिए जो आपको योजना मैगजीन से मिल जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगी. ठीक है, या तो योजना मैगजीन पढ़ सकते हो या इकोनॉमिक सर्वे. क्लियर एवरीवन, दिस मच इज क्लियर. देन नॉन फिक्शन इन ऑर्डर टू हैव अ मैच्योर्ड थॉट प्रोसेस. ओके, लवप्रीत क्रॉनिकल तो करंट अफेयर्स की है, आप क्या कहाँ पहुंच गए. ओके, देखो एक डिफरेंस होता है. योजना क्या है, वो आर्टिकल सबमिट करता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के ऊपर, ठीक है, इसलिए योजना कही जा रही है. बट वो भी आपको मेन से 2 महीने पहले पढ़नी है, ठीक है. योजना ऑल्सो 2 months बिफोर मेंस यू हैव टू स्टडी. ओके विशाल, या तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको पीडीएफ, या फिर आपको अपने जहाँ न्यूज़पेपर वाले भैया जो होते हैं ना आपके, जो डिलीवर करते हैं न्यूज़पेपर, उनसे बोलो वो दे देंगे. ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन पीडीएफ इज अवेलेबल. क्लियर. राइटिंग द एडिटोरियल्स इन आवर, कैन वी डू दैट पर डे. You have not arranged what you want to write in a proper manner. जो लिखना चाह रहे हो वो ढंग से लिख नहीं रहे हो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, यही चीज चाहिए ऐसे के लिए. जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है उसको कम से कम लिखो ढंग से, ठीक है, ताकि समझ आए. हाउ ऐसे इज डिफरेंट देन एडिटोरियल्स. संतोष, ऐसे एंड एडिटोरियल्स आर वन एंड द सेम थिंग. ऐसे हैज अ वर्ड लिमिट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम. एडिटोरियल्स आर द सेम, बस एडिटोरियल पे कोई वर्ड लिमिट नहीं होता. ठीक है. यस प्रिंस सरकार, यू कैन डू दैट. ओके क्लियर. नाउ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट गुड स्टोरीज, गुड लाइफ स्टोरीज ऑफ विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, राइट. क्लियर. निसर्गदत्ता महाराज, quotes said by these important personalities in our history. ओके क्लियर. रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने जो अच्छे अच्छे कोट्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो अच्छे अच्छे कोट्स दिए आप उनको भी यूज कर सकते हो. Clear. Now vocabulary. What type of vocabulary should you have? If you have a very good command on vocabulary, that is very good, right? But do not use very complex words. एकदम बड़े बड़े महान शब्द मत यूज करना. Keep it very simple. Examiner को सिंपल ऐसे चाहिए आप लोगों से, ठीक है. शशांक गुप्ता, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां हाईलाइट करने बैठोगे, ठीक है. जस्ट लिखो अलग से और उसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है. डू नॉट हैव टाइम टू हाईलाइट इन द पेपर. जस्ट यूज वन इंक ओनली इन द पेपर एंड अंडरलाइन वट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर राइटिंग. ओके, डोंट वेस्ट टाइम. टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है. क्लियर. ऑल राइट. प्रदीप, इट डजंट, यूपीएससी डजंट केयर अबाउट दैट. ओके प्रदीप, यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके फैन हो किसके नहीं हो. यूपीएससी को एक बहुत ही सिंपल ऐसे चाहिए, क्योंकि आप सिंपल लोगों को एडमिनिस्टर करने वाले हो फ्यूचर में, सिटीजन्स को एडमिनिस्टर करने वाले हो, ठीक है. तो उनको बहुत आसान भाषा में समझाना होता है. क्लियर. सो आप किसके फैन हो किसके नहीं, इसका यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है. इसीलिए आपको
बहुत ही सिंपल रहना है. यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन योर अप्रोच बिकॉज कीपिंग इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर अ डिस्ट्रिक्ट. आपको शायद किसी विलेज में पोस्टिंग में दे देंगे, राइट, किसी रूरल एरिया में पोस्टिंग दे देंगे, तो वहां पर आपके शशि थरूर सर के वोकैब जो है ना वो काम नहीं आएगी. इसलिए बहुत ही सिंपल अप्रोच रखना अपना. क्लियर? ठीक है. ऑल राइट. Is word power made easy? Good for vocab. I'm practicing. Mohammed Zibran, if your vocabulary is very poor, then okay. अगर vocabulary बिल्कुल ही बेकार है इस वक्त, तब आप कर सकते हो उस बुक को यूज. बट अगर एवरेज vocabulary है तो नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग से भी इंप्रूव हो जाएगी. उसके लिए अलग से बुक में इन्वेस्ट मत करो. इफ यू हैव एवरेज vocabulary, it can improve through daily newspaper reading also. Okay? क्लियर? बिल्कुल इतना हाई फाई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. जो चीज नॉर्मल तरीके से हो सकती है. ठीक है? क्लियर? All right. Now, what you must avoid in essay? ऐसे में क्या अवॉइड करना है? First of all, do not focus excessively only one point. कुछ बच्चे होते हैं एक पॉइंट पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर घुमा फिरा के बात कर रहे होते हैं, right? There are some students who pick up one point, one dimension, any historical or political aspect, and they talk about that only in the entire essay. So do not focus just on one point. एक dimension पे ही focus मत करना. Being an administrator, you should look into all the multi dimensions, right? जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन हो ना तो आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचते हो. ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी रीड अ लॉट एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट वी फील स्ट्रांगली अबाउट सर्टेन टॉपिक्स. ऐसा भी है, देखो आप बोलोगे कि हम न्यूज पढ़ते हैं, हमें पता है कि इस पॉइंट पे ये चीज गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये सही कर रही है, तो हम क्यों ना बोले. देखो अंडरस्टैंडेबल है कि आप भी ह्यूमन हो, आपके भी थॉट्स हैं, आपके भी ओपिनियंस हैं. बट ऐसे जो है ना, ऐसे एक ऐसी चीज है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को उजागर करेगा. व्हाट इज ऐसे? दैट इट विल you can say take out from you, from within your mind, the administrative quality which is required in this exam. So accordingly आपको एक citizen के perspective से नहीं, एक administrator के perspective से सोचना है. You have to think from the perspective of an administrator, not a citizen. So here criticism should be limited. Criticism ना ही करो तो ही अच्छा होगा. ठीक है? क्योंकि अगर आप criticize करने लग गए जिस government की पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म में चले गए, फिर सिटीजन्स का भरोसा उठ जाएगा, राइट? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप योर सिटीजन्स इन योर यू कैन से ट्रस्ट बास्केट, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेरी क्रिटिसिज्म ओरिएंटेड और वेरी नेगेटिव पर्सन. इसलिए अगर आपके कोई थॉट प्रोसेस है, किसी चीज में गलती दिख रही है, तो उसको भी न्यूट्रली सामने रखो. क्लियर? Santosh Kumar, if your sentence is not grammatically correct, how anybody else is going to understand what you want to say? अगर grammatical mistakes हैं आपके essay में, आपके sentence में, आपके words में, आप ही बताओ कोई seriously कैसे लेगा आपके lines को? Right? Okay? Clear? Can we practice essay writing editorials per day in our own words to practice essays? Yes, Anupam, you can do that. Alright, so make sure grammatical mistakes are zero, because if there are grammatical mistakes, that means इसका मतलब क्या है कि आप अपने थॉट्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते. इफ यू हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर एसे, दैट मीन्स यू आर इनकेपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर. तो आगे जाके रिपोर्ट्स कैसे बनाओगे जब आईएएस बनोगे? कैसे आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लिखोगे? राइट? नहीं आपको सूटेबल माना जाएगा. राइट? इस एग्जाम में इतने बच्चे बैठते हैं, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है और दूसरे वाले की नहीं है, तो उसके पेपर को उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे ना, आपको कम मिलेंगे, तो आपका चांस कम हो जाएगा. इसलिए मेक श्योर कि ग्रामर आपका सही हो, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर इंसान में होनी चाहिए, वेदर इट्स इन हिंदी और इंग्लिश. इफ योर ग्रामर इज वीक, दैट मीन्स यू आर not suitable for the position, because in future you have to make many reports. कितनी ministries को head करना है आपको, right? You have to create many reports in the future, many ministries you have to head. Clear? अंडरलाइन को भी ऐसे करना है क्या विशाल? yes, obviously अंडरलाइन नहीं करना होता, अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन कर दो, एक अंडरलाइन कर दो, ठीक है? उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर? अंडरलाइन कर सकते हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कोई कोट लिखा है, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है? चलो राजनंदिनी, यस, वेरी स्मॉल, साइड में पेंसिल से लिख लेना, फिर रबर से मिटा देना, ठीक है? यस प्रिंस सरकार. फिर कौन? प्राइम मिनिस्टर बैठ के लिखते हैं, वो ऑडिट करते हैं बाद में उनके ऐसे उनके स्पीच को, ठीक है? उसमें अपनी कोई बात ऐड करनी होती है तो वो करते हैं. आपका काम क्या है फ्यूचर में? आपका काम है रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग, डिसीजन मेकिंग. आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर उस एग्जाम की जॉब ही आपको प्रोफाइल नहीं पता, तो फिर क्या कर रहे हो?
You should know the job profile of the exam you are preparing for. You are going to represent so many people in the future. Okay, प्रिंस सरकार, तो आपको कुछ पता ही नहीं है फिर यूपीएससी के बारे में. इसका मतलब देखो, आपका सबसे बड़ा काम है रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और स्पीच भी इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट होता है. ठीक है, क्लियर. तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले उसके जॉब प्रोफाइल को अच्छे से रिसर्च करो कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना फ्यूचर में क्या करना है, तो आप अभी उसी हिसाब से तैयारी करोगे. इफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर, यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ट्रस्ट मी, आपके राइटिंग में भी वो डिफरेंस आने लगेगा. यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर एटीट्यूड ऑल्सो. ठीक है, सो जस्ट सर्च दी जॉब प्रोफाइल ऑफ यूपीएससी. यस, यू आर गोइंग टू बी अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. क्लियर, एग्जीक्यूटिव हो आप, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो जरा समझो. क्लियर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन टू योर एसे. एसे के लिए अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए. इजी ऐसे इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एंड वेरी इनोवेटिव. सिंपल और इनोवेटिव, जितना सिंपल उतना इनोवेटिव, उतना ही सुंदर. A fictitious incident or story, you can start with a very imaginative story also, जहां पर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इफ इट्स अ फिलोसफिकल ऐसे, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर कोई ऐसे है, तो आप किसी फिक्टिशियस स्टोरी या इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो. और यू कैन स्टार्ट विद अ रियल लाइफ एनेक्डोट ऑल्सो. किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल या स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो. इन योर एरिया, इफ यू हैव सीन एनी story or your any real life example. Clear? All right, a simple definition of the words in the question, right, can be there. एक simple definition, जैसे for example the question is ऐसे आ गया आपके, being wise does not means being knowledgeable, right, or being knowledgeable does not means being wise. So you can start with what is wise, who is a wise person, what do you mean by knowledge. ऐसे आप शुरू कर सकते हो. मान लो ऐसे आ गया कि नॉलेजेबल होना मतलब ये नहीं कि आप वाइज हो, कि आप चतुर हो, तो आप पहले समझाओ चतुर मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक इंसान नॉलेजेबल है उसका मतलब क्या है, फिर अपने ऐसे को शुरू कर सकते हो. क्लियर. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर ऐसे. इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे को. नाउ हाउ यू कैन कंक्लूड एन ऐसे. अपने ऐसे को कंक्लूड कैसे करोगे. कंक्लूजन नीड्स टू बी ऑन अ फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक नोट. हमेशा याद रखना, एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड. न्यूट्रल मीन्स क्रिटिसाइज नहीं करना. न्यूट्रल मीन्स प्लीज डू नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी, एनी पॉइंट, एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. न्यूट्रल रहना है, ठीक है. बट यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. दैट मीन्स यस, देयर आर इश्यूज इन सम एरियाज इन आवर गवर्नेंस, so you have to be solution oriented. आपको solution बताना है, आपको criticize नहीं करना, finger pointing नहीं करनी. do not finger point, you have to be solution oriented. संतोष कुमार, argumentative, किससे argument कर रहे हो. it's an essay, ठीक है. तो इसीलिए even if you are, see, argumentative नहीं, because essay is opinion based, you are not debating on paper. essay का मतलब ये नहीं है कि आप debate कर रहे हो पेपर पे, ठीक है. clear. essay means your opinions. so आप किससे argument करोगे, with whom you are argumenting. You have to be solution oriented. Opinion मतलब solution बताओ, solution क्या है, हमें पता है problem है, we know this is the problem, what is the solution. you are IAS officer, government is coming to you for the solution, right. आप IAS officer हो, लोग आपके पास solution के लिए, citizens will come up to you for solution. so if you are being argumentative, what are you doing, क्या कर रहे हो, ठीक है. अपने आप से झगड़ा नहीं करना पेपर के ऊपर, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है. जो आपका पेपर चेक करेगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होगा, वो कोई एक्स सिविल सर्वेंट नहीं होगा, वो एक सिंपल कॉलेज प्रोफेसर होगा. ओके, द पर्सन हु विल बी चेकिंग योर ऐसे पेपर विल बी अ प्रोफेसर, राइट. तो वो कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो आपके पेपर चेक करने आया है, आपकी पर्सनैलिटी देखने आया है कि आगे आप सिटीजन को हैंडल कर पाओगे या नहीं, ठीक है. क्लियर. वो भी एक सिटीजन ही है, तो उसके हिसाब से आपको पेपर लिखना है. According to a citizen, you have to write a paper. All right? Clear? इतनी समझ आ गई बात. प्रोफेसर भी छोटा मोटा नहीं होगा लवप्रीत, जैसे आप स्माइल कर रहे हो. पीएचडी होल्डर्स आते हैं पेपर चेक करने, जो खुद बहुत सालों की रिसर्च करके बैठे हैं, ठीक है. तो प्लीज बी सीरियस. क्लियर. दीज प्रोफेसर्स आर सीनियर प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स, ठीक है. तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आंसर लिखते टाइम. When you are writing answers, you have to be very careful. Clear? चलो,
Yes, they are from reputed universities and colleges. बाहर से भी आए हैं PhD करके, तो you have to be very careful. Then you can source some useful terms from the speeches of Prime Minister Modi also. हमारे current Prime Minister की speeches से भी आप ex Prime Minister की speeches से भी आप ले सकते हो, ठीक है? Clear? You can also take the references from our current Prime Minister or ex Prime Minister. Clear? उनके फ्रेजेस यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सबका साथ सबका विकास, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म. देन 5 T's, हमारे दिल्ली के सीएम ने 5 T's की बात की है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए. यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ आइडियाज फ्रॉम देयर स्पीचेस. उनके स्पीचेस से आइडियाज पिकअप कर सकते हो, ठीक है? नाउ दिस इज द एसे पेपर ऑफ 2019. ये एसे पेपर है 2019 का. एज यू कैन सी मैक्सिमम मार्क्स 250 मार्क्स. ओके, क्लियर? एंड टाइम इज 3 hours. यू हैव टू राइट 2 essays. 3 hours का टाइम होता है आपके पास. And in 1000 to 1200 words you have to write one essay. एक ऐसे आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखने हैं. 2 पेज आपको दिए जाएंगे ऐसे लिखने के लिए. You have to write 2 essays. ठीक है, 2 essays लिखने हैं. Choose any one topic from each of the section. 2 sections will be given, section A and section B. आपको 2 section देंगे. एक ऐसे 125 नंबर का होगा. Clear? These are the options given in section A. Section A में ये options है. Now see, it's very easy. First topic is wisdom finds truth. विवेक सत्य को खोज निकालता है. अगर दिमाग है, विवेक है, चेतना है, तो आप सच को ढूंढ लोगे. वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी. मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए. अगेन अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड ब्यूटीफुल ऐसे, राइट? क्लियर? देन व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो. बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी. Courage to accept and dedication to improve are 2 keys to success. अगर आप चूज करना चाहो तो 4th ऐसे को चूज कर सकते हो, राइट? ये सारे तो आपकी ह्यूमन वैल्यूज एंड मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर है. द 4th वन इज रिलेटेड टू यूपीएससी प्रेपरेशन जर्नी. ये तो आपके प्रेपरेशन जर्नी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास करेज है, डेडिकेशन है, तो आप सक्सेस पा सकते हो, ठीक है? फर्स्ट समझ नहीं, मीनाक्षी क्या समझ नहीं आया? अगर विजडम नहीं होगा, आपके पास विवेक नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगी, आप सच का पता कैसे लगा पाओगे, राइट? इसमें क्या मुश्किल है समझना, ठीक है? अगर आपके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, वैल्यूड विजडम है, यानी कि वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं, उसी हिसाब से आप सोचते हो, तभी तो आप सच्चाई का पता लगा सकते हो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? सूरज शर्मा बोल रहे हैं लिखेंगे क्या? दिमाग सबको दिया है भगवान ने. आप ये बताओ, ये 4th टॉपिक पढ़ने के बाद दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आया? प्लीज बताएं, जरा बताएं. करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस. मान लो कोई बच्चा फेल होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सम स्टूडेंट दे आर फेलिंग इन एन एग्जाम. फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इज करेज टू एक्सेप्ट. पहली चीज चुननी जो है आपको, वो है आप करेजियस बनो कि हाँ फेल हुए तो फेल हुए. सेकेंड चीज इज डेडिकेशन टू इम्प्रूव, कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इम्प्रूव करेंगे. इसी से तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी. अब बताओ सूरज शर्मा, नहीं समझ आया कुछ भी, क्या लिखेंगे? ये बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड लेकर आपने बात बोली है कि लिखेंगे क्या. आफ्टर रीडिंग दिस प्लीज टेल मी राइट नाउ, डिडंट यू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट? अपनी जर्नी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना बच्चे, कि हमारे में करेज है कि हमने इस डिसीजन को ले लिया है, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और डेडिकेशन है कि हम पास करके दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलेगी ना. थर्ड पॉइंट, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर सोसाइटी. थर्ड ऐसे है, यस यू कैन ऐड प्रेजी, यू कैन ऐड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, दैट विल बी वेरी वंडरफुल. थर्ड इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर सोसाइटी. ठीक है, मतलब जो आपके लिए बेस्ट है जरूरी नहीं वो समाज के लिए भी बेस्ट हो. ओके क्लियर? मान लो आप घूस ले रहे हो किसी से, आपके लिए तो ये बेस्ट है, बट समाज के लिए तो ये बेस्ट नहीं है ना. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग ब्राइब, दैट इज बेस्ट, दैट मस्ट बी गुड फॉर यू, बट इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. यू आर टेकिंग ब्राइब ऑन द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन्स, राइट? थर्ड, सेकेंड इज वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज, व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी. मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए. वैल्यूज बताती हैं कि ह्यूमैनिटी को कैसा होना चाहिए. वैल्यूज टीचेस यू व्हाट ह्यूमैनिटी शुड बी. ह्यूमैनिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी है वो नहीं, कैसी होनी चाहिए. दैट मीन्स वैल्यूज शुड लीड टू इम्प्रूवमेंट, शुड लीड टू चेंज, शुड लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, आपके जो मूल्य है ना लाइफ के,
वो बताते हैं कि कैसा होना चाहिए ह्यूमैनिटी को। अभी जैसी ह्यूमैनिटी है वो आपके मूल्य नहीं है। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, इन सम प्लेसेस हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड दिस वायलेंस, मॉब लिंचिंग, राइट। लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारे वैल्यूज है, हमारे मूल्य हैं, हम एक मुस्लिम से बात नहीं करेंगे, मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकता, ऐसे करके लड़ाई करते हैं। दैट इज नॉट ह्यूमैनिटी। वैल्यूज शुड बी positivity. That means you, whether it's a Muslim or a Hindu, they are one. They are created by the Almighty. When Almighty did not differentiate between them, then who are we to differentiate? जब उन्होंने differentiate नहीं किया तो हम कौन है? Plus secondly, the blood in our veins and the blood in the veins of Muslims. Hindus और Muslims के veins में जो blood है, both is of red color. लाल रंग का ही है ना, ऐसा तो नहीं हमारे में काला कलर है और किसी और में पिंक है, right? Clear? Clear? So that is why you have to quote these examples. ये समझ लो, इन एग्जाम्स को आप कोट कर सकते हो, राइट? क्लियर? अब समझ आया कैसे लिखना है? अब प्लीज मुझे बताओ कि पॉइंट्स अभी भी दिमाग में नहीं आएंगे ऐसे का टॉपिक देखने के बाद? नाउ ऑल्सो यू विल नॉट गेट पॉइंट्स इन योर माइंड आफ्टर रीडिंग द टॉपिक ऑफ ऐसे। अब भी टफ है, राइट नाउ इट इज टफ। विशाल इज सेइंग 1000 वर्ड्स में कैसे होगा? वैसे जब लड़ने बैठते हो किसी से तो 50,000 वर्ड्स बोल देते हो, और जब लिखने की बारी आएगी तो 1000 वर्ड्स भी नहीं निकल पाएंगे। When you fight, you can speak 50,000 words when you fight. नहीं गालियां निकाल देते हैं लोग लड़ते लड़ते, पर जब ऐसे लिखने की बात है तो 1000 वर्ड्स बहुत सारे लग रहे हैं, 1000 वर्ड्स भी बहुत बड़े लग रहे हैं, ठीक है? जब लिखने लगोगे ना थॉट्स बहते चले जाएंगे। लिखना तो शुरू करो, फर्स्ट स्टार्ट टू राइट, पिक अप अ पेन एंड ट्राई टू राइट, ओके? व्हेन यू विल राइट ऑटोमेटिकली द थॉट्स विल फॉलो, आराम से थॉट्स निकलेंगे, ठीक है? क्लियर? सेक्शन बी, अब इसमें से कोई एक ही ऐसे लिखना है। इन सेक्शन ए यू हैव टू पिक अप एनी वन, ओके? सेकंड सेक्शन बी अगेन कोई वन ऐसे लिखना है ना। सेक्शन ए इज फिलोसफिकल, सेक्शन ए तो बहुत इजी होगा, फिलोसफिकल होता है। सेक्शन बी इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है? दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक अ कीप अ टैब ऑन करंट अफेयर्स, इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे टैब रखना है, ठीक है? सेक्शन बी इज साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज। Second, neglect of primary health care and education in India, reasons for its backwardness. How many of you can write on the 6th essay? इस ऐसे पे कितने बच्चे लिख सकते हैं कि अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को आप निग्लेक्ट करो, एजुकेशन को निग्लेक्ट करो, तो कंट्री पीछे जाएगी ही जाएगी, पिछड़ जाएगी कंट्री। सब लिख सकते हैं ना? हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, राइट? हेल्थ केयर, अब कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस की अभी कितनी हाहाकार मच गया पूरी कंट्री में, ठीक है? कितना टाइम लगा हमें ट्रैक पे आने में, प्रेजेंट कंडीशन। बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट आंसर ऑन 7? रिपब्लिक टीवी, राइट? रिपब्लिक टीवी न्यूज में है आजकल, सब जानते हैं, अर्नब कुमार जी, राइट? उनको सब जानते हैं, न्यूज में है ना। क्या कर रही है मीडिया आजकल? सब जानते हैं, मीडिया की कंडीशन सब जानते हैं। एवरीबडी नोज मीडियाज कंडीशन। इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर देन यू विल बी नोइंग इट, ठीक है? क्लियर? मीडिया बायस्ड हो गई है तो इंडियन डेमोक्रेसी पे रियल खतरा तो यही है, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके के एसेज हैं। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली एंड इफ यू हैव अ गुड थॉट प्रोसेस, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अटेनिंग 60% प्लस मार्क्स इन ऐसे। 60% से ऊपर ही आएंगे ऐसे में, अगर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छा है और करंट अफेयर्स रोज पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपके 60% से ऊपर ही आने वाले हैं। नाउ बॉडी ऑफ द आंसर जो होता है आपका, द बॉडी ऑफ द आंसर, यू कैन रिप्रेजेंट 2 व्यूज ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक। एक टॉपिक पे अगर आपके 2 विचार 2 मत भी है ना, आप प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन प्रेजेंट 2 व्यूज ऑन वन टॉपिक, ओके? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1 व्यू, प्रेजेंट दिस आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, अदर व्यू है तो उसको प्रेजेंट करो, ठीक है? कभी कभी होता है एक ही टॉपिक पे हमारे 2 व्यूज होते हैं, तो आप प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन फ्रीली प्रेजेंट 2 व्यूज इन वन टॉपिक, ओके? सूरज शर्मा, थॉट प्रोसेस एक्सपैंड ऐसे होगा जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, एडिटोरियल्स डेली पढ़ोगे, एनालिटिकल माइंडसेट से चीजों को देखोगे, क्रिटिसिज्म नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, फिंगर पॉइंटिंग नहीं करोगे, अच्छे हस्तियों के बारे में उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे, ठीक है? तो इससे आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। वरना हम जब कुछ नहीं पढ़ते हैं ना तो हमारा वही एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस रहता है, हम वो कुएं के मेंढक हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें उससे निकलना है, तो उसके लिए क्या करना है? हमें किताबें पढ़नी है, नैरो माइंड को छोड़ना है, एनालिटिकल होना है। कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना तो क्रिटिसिज्म नहीं करना, सोल्यूशन ढूंढना है। व्हाटएवर करंट अफेयर्स यू आर रीडिंग, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन, यू डू नॉट हैव टू गो टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, ठीक है? क्लियर? तो अगर ये चीजें आप करते हो तो आपका दिमाग एक्सपैंड होगा, क्लियर?
मीडिया का क्रिटिसिज्म ज्यादा हो जाएगा। मीनाक्षी क्रिटिसिज्म क्यों करना है आपको? यहाँ पर फिर से कोई नहीं बोल रहा क्रिटिसिज्म करने के लिए, आपको तो समझाना है कि बायस्ड मीडिया का लोगों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, आपको किसी ने बोला क्रिटिसिज्म करने को? आपको ये बताना है कि बायस्ड मीडिया का हमारे डेमोक्रेसी पे खतरा कैसे बढ़ता है। ठीक है, बायस्ड मीडिया होगी तो मतलब झूठी न्यूज फैलेंगी, सिटीजन्स को पता नहीं चलेगा उनके हित में क्या है, उनके हित में क्या नहीं है। एग्जाम्पल दो कि अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मीडिया उस चीज को कवर ही नहीं कर रही, सिर्फ इधर उधर के रोने कवर कर रही है, राइट, राइट्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ये नहीं बता रही कि कौन सी पॉलिसीज एमएसएमई से रिलेटेड निकली हैं, राइट, या ये नहीं बता रही कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसका जनता पे क्या असर पड़ेगा। जब जनता के दिमाग में वायलेंस भरा जाएगा और उनके लिए क्या अच्छा है वो उनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? यस, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मीडिया ही हमें आधी अधूरी बात बताएगी तो लोग अवेयर कैसे होंगे? अवेयरनेस कम होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर मीनाक्षी? ऑल राइट, इतना सबको समझ आ गया? मैम इंट्रोडक्शन में एक ही, क्या आपने डाउट पूछा? किसी का डाउट आया था इंट्रोडक्शन में एक ही, आगे वो मिस हो गया कमेंट। नंबर ऑफ पैराग्राफ, दैट डिपेंड्स ऑन यू अमित, आपके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, 1000 वर्ड्स, आपके 1000 से 1200 वर्ड्स होने चाहिए, बाकी आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर? यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक इज गिवन इन द कॉमेंट बॉक्स, वहां पर नोटिफिकेशन आती जाती है। यस, क्लियर एंड नीट होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट राइटिंग 2 essays, कम से कम रोज 2 essays तो लिखने ही लिखने हैं। फ्रॉम इनसाइट्स यू कैन प्रैक्टिस इट, इनसाइट्स की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे मिलते हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, शर्मा 20 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स IAS ऑफिसर्स, आपको जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है वो ऐसे की तैयारी करवा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, तो वो आपके एसेज मॉनिटर भी करेंगे, चेक भी करेंगे, दे विल चेक योर एसेज ऑल्सो। ओके, क्लियर? एंड इफ यू आर गिविंग 2020 अटेम्प्ट, अगर 2020 का अटेम्प्ट दे रहे हो, रोज 2 ऐसे तो लिखो, और मेन से पहले कम से कम 7 से 8 ऐसेज प्रैक्टिस करके जाना, राइट, बिफोर मेंस। रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 7 to 8 essays। विशाल गुप्ता, आप तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछ रहे हो, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको, तो यूट्यूब चैनल पे सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है स्टार्टिंग से। ठीक है, लास्ट 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, दैट इज इनफ। ओके, यस, 4 to 5 पेजेस आर इनफ मीनाक्षी, अगर आपका वर्ड लिमिट पूरा हो रहा है उसमें। ठीक है, कब से करें प्रिपरेशन? रेवोल्यूशनरी व्यूज नहीं संतोष कुमार, रेवोल्यूशनरी व्यूज शुड बी वेरी हम्बली प्रेजेंटेड। अगर आपने हम्बली प्रेजेंट किया, एकदम अग्रेसिवली प्रेजेंट नहीं करना, देन इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, क्लियर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कैन गेट ऑन यूपीएससी वेबसाइट ना, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहां मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड देम। राइटिंग कैसे सुधारे? प्रैक्टिस से सुधारे, अपने वर्ड्स के बीच में गैप देकर लिखो। ठीक है, साफ लिखने की कोशिश करो। नीतीश कुमार, फ्रॉम 5 months बिफोर योर मेन एग्जाम, 5 months बिफोर योर मेन एग्जाम। ओके, सरबानी, दे गिव यू हिंट ऑल्सो, इनसाइट्स में ना वो हिंट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखो। चेकिंग का तो कोई प्रोविजन नहीं है, बट हिंट देते हैं, हिंट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, यस, शाबाज, अनअकैडमी प्लस पे वो मार्क्स वगैरह भी देंगे, आपको मॉनिटर भी करेंगे, तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्लियर? मैम, हाउ कैन वी नो दैट वी हैव रीच द वर्ड लिमिट? बाय प्रैक्टिसिंग। First practice at your home, right? You will, after writing 4 to 5 essays, count your words and count the pages the words are taking. तभी तो पता चलेगा, लिखोगे नहीं तो मैं कैसे बता दूं आपको? हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स ऑन दी हैंडराइटिंग ना। सो फर्स्ट प्रैक्टिस एट होम। नलिन नहीं, वो आपके विजन IAS करता है, विजन IAS के ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर कॉपीज हैं। ठीक है, विजन IAS का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर कॉपीज है उनकी, जो मॉक टेस्ट की कॉपीज हैं।
मीनाक्षी अगेन दिस इज योर चॉइस, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है, आपका चॉइस है, कर्सिव लिखो या स्ट्रेट लिखो, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। यस आई ऑल्सो मेंटर ऑन अनअकैडमी प्लस, आई एम ऑल्सो मेंटरिंग। अनुपम राज 2021 के लिए 1 ईयर का कोर्स यू कैन ज्वाइन ऑन अनअकैडमी प्लस, 1 ईयर्स कोर्स, एक्स सिविल सर्वेंट्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स आर टीचिंग, यू कैन ज्वाइन 1 ईयर्स का कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। मीनाक्षी यूपीएससी की कोई प्रायोरिटी नहीं है इस पे, यूपीएससी देखो आपके ओपिनियन न्यूट्रल होना चाहिए बस, बाकी आप लिखते कैसे हो उसका यूपीएससी क्यों चेंज करेगी, इंटरफेयर क्यों करेगी, राइट। यूपीएससी की कोई प्रायोरिटी नहीं होती, आप साफ सुथरा लिख कर दो बस उनको कि वो पढ़ सके चेक करते टाइम, ठीक है, बस उतना ही काफी है। यस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस। समीर अहमद इट इज राकेश वर्मा सर, अवधेश सिंह सर, रोमन सैनी सर, नंदिनी महाराज मैम जो करंटली आईएएस ऑफिसर है, राइट, क्लियर, ये सभी टीचर्स हैं। जी राजपूत सर हु इज एन एक्स आईपीएस ऑफिसर, जी राजपूत सर एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, ही इज टीचिंग ज्योग्राफी। ऑलराइट, आप मेंटोर रहेंगे, यस हम भी मेंटोर रहेंगे अनअकैडमी प्लस पे, वी आर ऑल्सो देयर ऑन अनअकैडमी प्लस। एनी अदर डाउट एनीबडी, अनअकैडमी प्लस को अगर आप ज्वाइन करते हो मेरी मेंटरशिप आपको पूरे साल मिलेगी, राइट, आई विल बी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर द इंटायर 1 ईयर, राइट, and on Unacademy Plus there are several retired IAS officers, current IAS officers also, they will teach you in Hindi also, they will teach you in English also, whichever language you will demand they will teach you in that language, आप कोई भी लैंग्वेज डिमांड करोगे वो आपको उस लैंग्वेज में टीच कह रही हूँ पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। आपको 10% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा शर्मा 20 रेफरल कोड यूज करके, आप 1 साल का कोर्स लो, 2 साल का लो, 3 साल का लो, आपकी मर्जी है, यू कैन टेक 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स कोर्स, दैट इज योर डिसीजन, सोनली योर डिसीजन, ऑलराइट, क्लियर, आप 6 मंथ्स का लो, 3 मंथ्स का लो, 4 मंथ्स का लो, दैट इज योर डिसीजन, ओके। मीनाक्षी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही सब्जेक्ट उठाना और कोई सब्जेक्ट नहीं, क्लियर, अगर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर, आप उसमें इंटरेस्टेड रहने चाहिए एंड तक ताकि अच्छे से पढ़ पाओ, बोर ना हो जाओ बीच में, या आपको बोझ ना लगे, ठीक है, तो फिर यही ले लो, अगर आप टॉपर हो इस सब्जेक्ट में, आपको अच्छा लगता है तो यही लो, आपका इंटरेस्ट यहाँ पर कैरी मैटर करता और कुछ मैटर नहीं करता, ओके आयुष, आई एम हैप्पी दैट यू आर नाउ कॉन्फिडेंट। प्लस पे नोट्स कैसे मिलेंगे, हरीश नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एजुकेटर दे देंगे, ठीक है, तो आप क्लास से पहले ही डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं नोट्स, रोज मिलते हैं डेली हर क्लास में। आदर्श सिंह उसमें थोड़ा टाइम है, जरा मुझे टाइम दो क्योंकि हम उस फील्ड के नहीं है ना, कॉमर्स अकाउंटेंसी में थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है। सम टीचर्स टोल्ड मी अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। मीनाक्षी कौन से टीचर्स बोल रहे हैं आपको, ठीक है, किसी की सुना मत करो, आपका दिल जो कह रहा है वो करो तो सक्सेस पाओगे, और दूसरों की सुन के करोगे तो 10-20 साल लगते हैं फिर सक्सेस पाने में, ठीक है, अपनी सुनोगे तो एक बारी में सक्सेस मिल जाएगी, कान बंद करके पढ़ाई करने बैठ जाओ, बस कान तभी खोलने हैं जब आपको, ठीक है, जब आप क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, कोई आपको कुछ कहता है उसकी सुनो मत, करके दिखाओ, ठीक है, इस तरीके के अप्रोच से जियोगे जिंदगी तो हर एरिया में सक्सेस है, और दूसरों की सुन के जियोगे तो कहीं सक्सेस नहीं है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।